In CAPF AC 2022 Mission 250 Plus program, already I gave you overview on 1st of June video. You got overview of the program, and in this video I am explaining in detail what all I will provide in this series. There will be two components. Obviously, I said some will be in open. For example, some question in open, so that everyone can get the advantage of that. And some questions will be, some sections will be for paid subscriber only, because it requires money to make these questions in type form, make in this format. For example, in PPT, make PPT discussing about the topics and other, all require efforts and money. Okay, so whatever I am, for example, doing, that is my cost, but I have to pay to other people also to give some question, to give to type the things, to make in this format, for example, in PPT and other. So everything requires cost. There is nothing such as free lunch. You are knowing from economics classes. So in 50 days program, I will discuss what all I will provide. Okay. So already I said, take realistic plan. It is not about ki I will get 200 or 220 or 230 in paper one. No, I'm not saying. Yes, there are people who are saying ki I will get 200. I'm not going towards that. Paper one target 150 plus marks. Remember that in mind. Ki question will be of similar pattern which are coming in previous year, that I am taking as a standard. If question will be, for example, recently you have seen every year in CSE pre, cutoff is going down, and their question is of relatively tougher. So if UPSC decides for assistant commandant also cutoff will be down, then they can set target even ki when getting 100 marks will be difficult, getting 50 marks will be difficult. If UPSC determine yes, now you will not cross 100 marks, even topper, then they can set question in such a way. But I am taking as generalized view ki whatever question they are giving a standard, that will they will put. Second paper target should be 100 plus marks. 100 plus any marks should be there. And always remember, it is about 250 combined. It is plus. So anyone, for example, someone can score 170 in paper one. Then even if you are getting 180, then your balance. Someone is getting 160, then even if you are getting 90, that will be okay. Someone is getting 140 itself, then you have to score, for example, 110. If you are getting 130 in paper one and 70 in paper two, then obviously you are in challenging position. But you have to work hard. You have to put yourself little more in the sense ki should give little extra push. So depending on ki where you are staying, where you are lying at this time, where you are lacking at this time, that you have to focus. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है. वो स्थिति कैसे पता चलेगा? आप कोई भी टेस्ट करो अपने को. आप पेपर वन प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा करके देखो. यदि आप ऑनेस्टली, अब ऑनेस्टली इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप रट्टा लगा करके पूरा बैठे हुए हैं, तो फिर तो आप हो सकता है 250 का 250. एक नॉर्मल में कोई भी सेट लो, किसी का भी, और उसमें देखो कि हम कितने कर रहे हैं. पेपर वन में तो आप सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो. पेपर वन में कोई दिक्कत ही नहीं है. पेपर टू में एक्चुअल में है कि सेल्फ इवेल्युएशन नहीं हो पाता है. तो डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, आप उस अनुसार वर्क करो. और हमेशा ध्यान रखो कि अनरियलिस्टिक गोल नहीं रखो कि आप 50 मार्क्स भी नहीं ला रहे थे और आप सोच रहे हो कि तुरंत हम क्वालिफाई कर जाएंगे. इट एवरीथिंग टेक्स टाइम. आप एक प्लांट लगा रहे हो, आज लगाए कल फल नहीं देने लगेगा ना. उसमें उसको पहले जमीन में जड़ें उसकी मजबूती पकड़ेगी, उसकी शाखाएं निकलेगी, उसकी पत्तियां हरी होंगी, उसके बाद वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, फूड स्टोरेज करेगा, तब जाकर के फल निकलेगा. तो इट विल टेक टाइम. ओके, तो हम क्या प्रोवाइड कराएंगे इसमें? मिनिमम 2500 क्वेश्चंस. लास्ट ईयर भी हमने 2500 क्वेश्चंस बोला था. लास्ट ईयर भी हमने 2500 प्रोवाइड किया था.
तो मिनिमम 2500 हम अधिक प्रोवाइड करा देते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी लिटिल मोर ही हमने करवाया था, तो हम एक्स्ट्रा करवाएंगे, लेकिन मैं मिनिमम इस वजह से कह रहा हूं कि अब जितना कर रहा हूं एटलीस्ट उतना कराऊंगा, उससे ज्यादा ही कराऊंगा, उससे कम नहीं। तो 2500 क्वेश्चंस को करवाऊंगा, प्रैक्टिस एंड डिस्कशन। लास्ट टाइम देखो हमने सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन नहीं किए थे, आई एक्सेप्ट हमने कुछ देखा जाए तो करीब 800 का के आसपास को डिस्कशन किया था। लेकिन इस बार ऑल 2500 क्वेश्चंस का डिस्कशन इन द सेंस की कुछ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ओपन में होगा। मान के चलो कि जैसे लास्ट टाइम हमने 25 क्वेश्चन डेली आपको ओपन में रहेगा, उसका डिस्कशन सहित रहेगा ओपन में। इस पे किसी दिन मान के चलो एज ए टेस्ट के फॉर्म में 50 भी ओपन में रहेगा, लास्ट टाइम भी जैसे था। तो मिनिमम 25 क्वेश्चन ओपन में आपका रहेगा, वो सबके लिए, वो नन पेड सब्सक्राइबर के लिए है, इन द सेंस कि जो रेगुलर रूप से हमसे जुड़े हुए हैं लेकिन किसी कारण से वो पे नहीं करना चाहते हैं, चाहे उनकी मजबूरी हो, फाइनेंशियल स्टेटस वीक हो, जो भी सिचुएशन हो सकता है। तो उनके लिए कुछ क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल 25 क्वेश्चन उनके लिए पेपर 1 में फ्री ओपन में रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपका हम ग्रुप में डिस्कशन, कुछ जो एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में, कुछ आपका लाइव सेशन में। तो जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल कुछ कुछ सेशंस आपको लाइव दे रहे हैं, तो उसी ढंग से जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनके लिए लाइव सेशन रहेगा, और कुछ रिकॉर्डेड भी रहेगा, कुछ ओपन में रहेगा। तो आप ओपन वाला भी देखोगे। ओके, तो ओपन क्वेश्चन तो 25 मिनिमम रहेगा, उस सारे का डिस्कशन। अब इसमें क्या सेशन रहेगा कि पहले आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। ओके, वो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, सोल्व करके आप देखोगे कि यस हम इतने क्वेश्चन मान के चलो कि डिपेंडिंग ऑन 75 से 100 क्वेश्चन डेली आपको मिलेगा। तो ओपन में 25 क्वेश्चन, और जो कंप्लीट आपका सेट जो है वो मिलेगा जो पेड सब्सक्राइबर होंगे। ओके, तो आप पहले क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, फिर उसके बाद आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, आंसर की से मैच करोगे, ये सारी चीज करोगे। पेपर 2 में जो है 100 टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे, कि यानी कि टॉपिक को समझाना ये सबसे चैलेंजिंग काम होता है, कि मेजोरिटी ऑफ टाइम जो होता है वो कैंडिडेट समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली टॉपिक में क्या करा। और 50 प्रैक्टिस, ये 50 प्रैक्टिस का मतलब जो है जो पेड सब्सक्राइबर होंगे ऑब्वियसली इसमें जो है कुछ टॉपिक को हम ओपन में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस वाला सेशन होगा वो तो ओनली पेड वाले के लिए। तो इसी 100 में से जो 50 टॉपिक करीब रहेगा वो प्रैक्टिस आप करोगे, कि आप लिखोगे यदि पेड सब्सक्राइबर हो तो और प्लस ग्रामर का। तो इसमें से ऑब्वियसली है सम इन ओपन एंड मेजॉरिटी फॉर पेड सब्सक्राइबर। ओके, ये सिचुएशन हम प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट आपका एडवांटेज, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एडवांटेज क्या होगा, कि आप रेगुलर रहोगे विद शेड्यूल। जो शेड्यूल चल रहा है तो उसके साथ आप रेगुलर रहोगे। सेट टारगेट जो है कि इतना हमको आज कंप्लीट करना है, तो उस चीज को कंप्लीट करोगे। यू विल मेंटेन डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी इन द सेंस सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ पंक्चुअलिटी। ऐसा नहीं है ना कि हम डेली आपको उठक बैठक कराने जाएंगे कि क्यों नहीं होमवर्क किए, नहीं। जो आप कैंडिडेट हो, जो जुड़े हुए हो, मैं रेगुलर रूप से ट्रैक करने का कोशिश करूंगा। मैं रेगुलर आपसे पूछूंगा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। जो सेशन होगा उसमें आप अपने डाउट्स वगैरह करोगे। अब इतने आप छोटे नहीं हो ना कि क्लासरूम में जैसे आप, ये तो मैं क्लासरूम में नहीं करवा रहा हूँ, फिजिकल क्लासरूम में। अब फिजिकल क्लासरूम में तो कैंडिडेट को डांटते भी हो, कभी भी ये करते हो क्या लिखे हो नहीं। यहाँ तो दूर से हम इतना बस जस्ट हम मोटिवेट ही कर सकते हैं, जस्ट आपको रिमाइंड ही कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको डांटता भी हूँ, जो क्लोजली जुड़े हुए हैं, जो फॉर एग्जांपल पेड सब्सक्राइबर हैं, जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें मैं डांटता भी हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे लेते हो। आपको ऑब्वियसली ही इनफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस वेर एवर रिक्वायर्ड। जितना हो सकता है, जो पॉसिबल होता है मेरे लिए, मैं करने की कोशिश करता हूँ। आई हैव नो अनलिमिटेड टाइम, सो अनलिमिटेड किसी को भी टाइम नहीं दे सकता हूँ। जितना पॉसिबल हो सकता है, और ऑलवेज रिमेंबर, रिजल्ट जिनका भी होता है उनको अपने दम पे होता है। मैं हो, कोई और हो, तो ये आप सपोर्टिंग रोल में ही होते हैं, अदरवाइज मेहनत उनका ही होता है। अब फॉर एग्जांपल अभी देखोगे, जो फर्स्ट रैंकर हैं, सेकंड रैंकर होते हैं, उनको क्लेम करते हैं 100+ एटलीस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, कि वो हमारे पास थे, हमारे पास थे, हमारे पास थे। बिलीव मी, ऑल इज गुड।
ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से वो उन्होंने किसी न किसी रूप से गाइडेंस लिया, कुछ न कुछ चीजों को सोल्यूशन वहां से प्राप्त किया, कुछ चीजें उनसे उन्होंने प्राप्त किया, तब जाकर के बने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका मेहनत अपना था। अदरवाइज कोई इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट का था मैंने करवाया, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी गलत में हैं, और जो भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी गलत में है। कि आप यदि करवाते तो आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स था, लेकिन आपके पास तो उस अनुसार आप ही के सारे स्टूडेंट होने चाहिए था, आपकी मेहनत। या किसी के पास 1,000 स्टूडेंट है तो आपके पास 1,000, ये आप नहीं करवाते हैं, स्टूडेंट का मेरिट करवाता है, यस। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान न होई, चाहे बिरंची शंकर सम होई, कि कोई भी, जो लॉर्ड शिवा ये है आदि गुरु कहा जाता है, लेकिन उनके भी कोई गुरु हैं। या आप जो भी किसी को, शंकराचार्य को ही देखो, उनके भी गुरु हैं। तो जो भी पर्सन हैं उनके कोई ना कोई होते हैं। आप कहीं ना कहीं से लर्न करते हो, कुछ चीजें यहाँ से प्राप्त करते हो, कुछ चीजें वहां से प्राप्त करते हो। मेरे खुद की जो लाइफ की लर्निंग है, मैंने बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे मेंटोर्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लर्न किया। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने हमारे ऊपर सारी चीज को प्लांट कर दिया। यस, बहुत सारी चीजें हैं मैंने अपना खुद से भी जाना है। जो लोग, कुछ कुछ चीजें हैं कि यस इनका ये पॉइंट अच्छा लगा, किसी का लेक्चर हमने देखा, किसी का वीडियो हमने देखा, तो वहां से प्राप्त हुआ। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि जो मेंटरशिप मिलता है, जो गाइडेंस मिलता है, तो दैट्स फाइन, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो आपका अपना होता है। ये स्टार्ट हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि 15 जून से हम स्टार्ट करेंगे, और एंड आपका 4 अगस्त को ये होगा। इनफैक्ट देखो, 7 अगस्त को आपका एग्जाम है, 6 अगस्त तक एक तरह से जो भी हो सकता है हम आपके साथ रहेंगे। इवन 7 अगस्त को कुछ आपको डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चन रहता है, कुछ मोटिवेशन की कमी रहती है, तो आई एम देयर विद यू टिल एग्जामिनेशन। इवन एग्जामिनेशन के आफ्टर भी हूँ, लेकिन मेनली जो ये प्रोग्राम के फॉर्म में है तो वो 4 अगस्त को ये एंड होगा। मंडे से फ्राइडे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप अपना टास्क मिलेगा, उसको वर्क करोगे। आप जो भी पेड प्रोग्राम वाले होगे, जूम का जो क्लास सेशन अटेंड करोगे, जो क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है वो पुट करोगे, और अपना रेगुलर रूप से उस पर वर्क करोगे। और 1 और 2 एक्सेप्शनल केस में ब्रेक हो सकता है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सम टाइम सम वर्क विच आई कैन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, आई हैव टू डू। तो उस ड्यूरेशन में आपका एक आध दिन ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज मंडे से फ्राइडे ये मिलेगा। ओके, अब देखो इसमें जो क्या है कि जो पेड ग्रुप में है, तो हमने ये बोला कि देखो जो हमारे पास ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम में है तो वो तो बाय डिफॉल्ट इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे ही। या जो टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, टेस्ट टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेस्ट जो लिख रहे हैं, तो उनको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं उनके बारे में कुछ चीजों को जानता हूँ, तो उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं। यस, उनको पे तो करना पड़ेगा, लेकिन उनको टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये जो 250 है, ये है वो लोग जो हमसे टेस्ट भी में ना जुड़े हुए हैं, न मेंटरशिप प्रोग्राम या किसी भी प्रोग्राम में हमसे जुड़े हुए नहीं है। अब फॉर एग्जांपल कोई ऑलरेडी है जो रिटन क्वालिफाई है, तो उसे टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उसे तो डिस्काउंट मिलेगा, उसे आप हम डिस्काउंट में देंगे ही। तो मिनी टेस्ट उनके लिए होगा। पेपर 1 में, पेपर 2 और पर्सनालिटी तीनों कंपोनेंट को हम लेंगे। टेस्ट फी इसके लिए जस्ट 250 होगा। इनफैक्ट देखा जाए तो हम पेपर 2 का सिर्फ एक टेस्ट के लिए 500 चार्ज करते हैं, लेकिन इसमें जस्ट 250 रहेगा। तो उसमें मिनी टेस्ट होगा, यानी 50 क्वेश्चन आपका पेपर 1 में होगा, पेपर 2 में 1 एसे, 1 आर्गुमेंट, 1 रिपोर्ट, 1 प्रेसी, 1 आरसी प्लस ग्रामर जो आपका होता है, तो वो पेपर 2 में होगा। एंड 5 मिनट्स का पर्सनालिटी टेस्ट। जैसे हम एक ग्रुप रखेंगे, मान के चलो कि 5 पर्सन का, तो 5 पर्सन ग्रुप में रहेंगे, तो मैं हर को सपोज 5 5 मिनट्स ये दूंगा। हाँ, ये आप बताओ, ये आपका किसी चीज पे क्या ओपिनियन है, जो कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ ये हैं, उससे आपका, तो उसके अनुसार जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके अनुसार मैं डिस्काउंट आपको दूंगा। आप बहुत अच्छा करोगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट ये चीजें मिलेगा जो फी में, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको 250 पे करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, या जो ऑलरेडी रिटन क्वालिफाई हैं, उनको टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोग्राम फी जो है वो आपका पेपर 1 का 2500 और पेपर 2 का 2500 कंबाइंड यदि लेते हैं तो 4500। और ये आपका 16 जून तक वैलिड है। 16 जून आपका जो भी है 11:59
PM तक आप ये जो भी है कर सकते हो। आफ्टर दैट 500 एक्स्ट्रा, अब यदि मान के चलो उसके बाद लेते हो तो ये 2500 की जगह 3000, इसमें आप ये दोनों कंबाइंड लेते हो तो आपको 4500 की जगह 5000 पूरे पे करना पड़ेगा। और जो देखो मेंटरशिप प्रोग्राम है उनको फी पे करने की जरूरत नहीं है। और जो आपका टेस्ट लिख रहे हैं हमारे पास तो वो डिस्काउंट पाएंगे। और ऑल्सो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ 13th जून, जो 13th जून को टेस्ट होगा उसमें आपका डिस्काउंट मिलेगा डिपेंडिंग ऑन आपके परफॉर्मेंस। अब एकदम आप जीरो परफॉर्मेंस में होगे, देखो मैं इस प्रोग्राम में सबको शामिल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिनको गाइड कर सकूं प्रॉपर तरीका से उन्हीं को शामिल किया जा सकता है। अननेसेसरी ये नहीं है, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कैंडिडेट को कि मैं सिर्फ पैसे आप पे कर दो, मुझे कोई मतलब नहीं। आप यदि लेवल में नहीं हो, अभी इस समय आपको नहीं लगता है, तो इट्स बेटर है कि आप जैसे ओपन में जो प्रोग्राम चल रहा है, ओपन में मैं जो कुछ चीजों को प्रोवाइड कराऊंगा उनको देखो और आप अपना नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखो। यदि आप इस ईयर में उस लेवल में उस स्टैंडर्ड में नहीं आ पाए हैं, लेकिन आपको लगता है कि यस हमें पुश करना है, व्हाट्सोएवर परफॉर्मेंस हमारा होता है, हम अपना मेहनत आपके साथ करने के लिए तैयार हैं, तो आप आ सकते हो उस चीज के लिए। अब ये देखो जो भी है कम लोग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कॉस्ट काफी लगता है। मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि वन क्वेश्चन पेपर को टाइप करने का, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर टाइप करने का कॉस्ट जो आपका होता है 10+ रुपी सिर्फ वन क्वेश्चन का पड़ता है। अब आप ये मान सकते हो कि मिनिमम आपको 25,000 प्लस जो है पेपर वन के सिर्फ टाइपिंग का कॉस्ट होता है। फिर आपका पेपर टू का कुछ कंटेंट होता है और सारी चीजें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने ऑलरेडी बोला कि मैं ज्यादा कैंडिडेट को ले नहीं सकता हूँ। जो भी होते हैं 10, 20, 15, 25, ये इतने ही कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं। आई नो एवरी टाइम की पेड प्रोग्राम जब भी होता है वो देखो इसी डिमांड और सप्लाई का, हर वो चीज में देखो कोई भी चीज को, मैं अभी इकोनॉमिक्स के जो 4 लेक्चर्स इकोनॉमिक्स वाला में प्रोवाइड किया उसमें देखो पूरी चीज डिमांड और सप्लाई पर। बी रियलिस्टिक, आई एम ऑल्सो रियलिस्टिक, यू शुड ऑल्सो रियलिस्टिक। मैं बहुत लंबे समय तक मैंने फ्री में वर्क किया ये चीजें, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि आप, मैं फ्री में वर्क कर सकता हूँ दूसरे नहीं कर सकते हैं। और फ्री जो है लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता है। आप इस रूल्स को ये समझो, गवर्नमेंट को थोड़ी देर के लिए मानो टैक्स लोग पे करना बंद कर देंगे, गवर्नमेंट तुरंत कोलैप्स कर जाएगी। ओके, एक बस ये एक दिन सब लोग सोच लें कि अब हमें टैक्स पे नहीं करना है, सरकार चाहे तो सबको जेल में डाल दे, लेकिन क्या वो इकोनॉमी चलेगी? नहीं, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। प्रॉपर जब तक चीजें नहीं चलती है उसमें स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को समझो। ऐसा नहीं है मैं 2500 कर रहा हूं तो 1000 स्टूडेंट ले रहे, नहीं, मैं 1000 स्टूडेंट और 100 स्टूडेंट और 500 स्टूडेंट को सपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ 10, 15, 20, 25, मैक्सिमम 50, उससे ज्यादा कैंडिडेट को मैं कर ही नहीं सकता हूँ, उतनी मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास जितना टाइम होता है उतना ही मैं कर सकता हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ये आपको समझना चाहिए, आपको ये वर्क करना चाहिए। और मैं आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार हूँ। जो भी सपोर्ट हो सकता है वो मैं करता हूँ, इवन इफ यू आर टेकिंग और नॉट टेकिंग, यू आर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग, यू आर राइटिंग टेस्ट और नॉट राइटिंग, डजंट मैटर। ओके, सो कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है प्रोग्राम को लेकर के, आई आई होप कि मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी जो कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट है, आइदर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। प्लीज प्लीज मैसेज ओनली, बिकॉज आई ऑलरेडी से कि समटाइम आई एम रिकॉर्डिंग ए वीडियो, समटाइम आई एम चेकिंग अ कॉपी, समटाइम आई एम टॉकिंग टू अ कैंडिडेट whom I have assigned time। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पेड प्रोग्राम के हैं या कुछ ऐसे भी हैं जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ इंटरव्यू वाले कैंडिडेट हैं, तो सबको मैं टाइम देता हूँ उस अनुसार। ऐसा नहीं है आपको मैं मैसेज करने का रहा हूँ, तो यदि आपको जरूरत, मुझे जेन्युइन लगेगा कि यस आपको जरूरत है, तो आप उस चीज को बात भी करेंगे मैं टाइम जब दूंगा तो। अदरवाइज एक चीज मानो कि आप राइटिंग में जब लिखते हो तो आप एग्जामिनर को नहीं ना बताने जाते हो सर प्लीज फोन पर मैं बता दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं, आपके बिहाफ पे आपकी राइटिंग बोलता है। तो इस वजह से आप मैसेज करो, मैं मैसेज से इतनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास कि मैं समझ सकता हूँ आपका मैसेज को यदि सही से आपने लिखा है तो। और यदि आप मैसेज को हम तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो इसकी मतलब है कि आपको बहुत अपने में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। तो अदरवाइज ट्राई करो, आप अपने को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कुछ आप कर रहे हो, कोई फोन कर रहा है तो दिक्कत होती है,
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज करो, मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ। ओके, और तो आप आपके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स जो हैं वो मोस्ट वेलकम है, और आप जो भी हैं प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है, फायदेमंद है, और मैंने ऑलरेडी बोला कि बहुत सारे वीडियोज जो हैं वो हमने लास्ट ईयर वाले सारे जो ओपन वाले हैं वो पड़े हुए हैं, आप उनको देखो। 1 2 3 4 5 30 सेशन एक तरह से डाले हुए हैं, 30 सेशन, इनफैक्ट 30 सेशन इस बार का, फिर उसके पहले बार 20 वाले भी, तो बहुत सारी चीजें दिए हुए हैं। आप देखो, आप उनको किसी वीडियो को है पूरे देखो, एक देखो, 2 देखो, 4 देखो, 6 देखो, 8 देखो, 10 देखो, 20 देखो, 50 देखो। जब सेटिस्फाई हो जाते हो कि यस ये सुभी टीचर है, मेंटर है, ये मेहनत कर रहा है, तब आप पेड में ज्वाइन करो। अदरवाइज मैं ये नहीं कहता हूँ। आई also belong from a middle class family. I know the things. Yes, when for example I was in job, then at that time it was good enough. But मैं लंबे समय से जॉब में नहीं हूँ. I also face financial difficulty and other things. So I know the situation. तो इस वजह से मैं इतना ही चार्ज करता हूँ, इतना ही ये बोलता हूँ जितना से कि हमारे भी काम चले और आपके भी। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल बल्क में स्टूडेंट हो जाएं तो कम चार्ज किया जा सकता है, बहुत कम चार्ज किया जा सकता है। लेकिन जस्ट इमेजिन करो, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये टेस्ट जो है पेपर 2 का 100 में ही चेक कर रहे हैं, लेकिन बिलीव मी डियर, किसी भी मेंटोर का आप देखोगे, कोई भी एक दिन में कितने कॉपी मार्क चेक कर सकता है। आप रियलिस्टिक कभी सोचने का कोशिश करो। एक मेंटर एक दिन में 5 कॉपी से ज्यादा चेक नहीं कर सकता। मैक्स करेगा एकदम ध्यान नहीं देकर के सिर्फ कॉपी ही चेक करना, मार्क्स देना, तब तो 100 कॉपी में भी मार्क्स दे सकता है। लेकिन आपकी गलतियां बताने और सारी चीजों को करने, तो मैं समझता हूं कि मैं आज तक 5 कॉपी से ज्यादा कभी भी चेक ही नहीं कर पाया हूं, 1 डे में 5 मैक्स। ठीक है, तो 5 कॉपी यदि चेक करें थोड़ी देर के लिए, आप मानो, आपकी ही बात मान लिया जाए, 100 रुपी डेली मिले तो 500 रुपी, तो डियर एक एमजी नरेगा जो लेबरर है उससे बेटर एक टीचर को समझो। जिनको ऐसा लगता है, आप किसी चीज को रियलिस्टिक में सोचने की कोशिश करो। एक असिस्टेंट कमांडेंट जो भी है, उनकी सैलरी एक तरह से, जब मैं अपने बैच का देखता हूं तो उनकी सीटीसी यानी कि जो है तो ये अप्रॉक्स 4000 है। आप समझ सकते हो कि 4000 सेम स्टैंडर्ड का एक है, और जो वो वर्क नहीं कर रहा है तब भी ये। लेकिन अब डेली तो आपको 5 कॉपी नहीं मिलेगी, एक एक कॉपी मान के चलो, किसी दिन है, किसी दिन कोई कॉपी नहीं मिल रहा, तो सोचो कोई दिन भर 100 रुपये में काम कर सकता है, 200 रुपये में काम कर सकता है। तो कुछ चीजों को रियलिटी आपको सोचने की जरूरत होती है। यदि आप रियलिटी सोचोगे तो चीजें आसान होती है आपके समझने के लिए भी। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, जब आप थॉट देते हो, रियलिटी सोचते हो, तो आपको पता चलता है। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।